Good evening, sir. Hello, good evening. Yes, sir. Good evening. थोड़ी देर हम वेट करते हैं और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, फिर कुछ समय बाद हम लोग शुरू करते हैं। Okay, sir. स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। इस पर्टिकुलर एनपीटीईएल कोर्स जिसका नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स इन हिंदी, इसके लिए। तो कोर्स का कंटेंट आपने देख लिया होगा स्वयं की वेबसाइट पे, जो भी पोर्टल है वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ लेक्चर्स आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, और एक असाइनमेंट मिलता है हर हफ्ता, और कुल 12 सप्ताह का ये कोर्स है। तो ये जो लेक्चर्स होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, और उसमें हमारे पास प्रोविजन नहीं होता है कि हम स्टूडेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएं, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप स्वयं के पोर्टल पर जाके Q&A सेक्शन में, डिस्कशन वाले फोरम में आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो सेशन है, ये हमारे लाइव इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। तो इसमें आप लाइव सेशन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो क्योंकि ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, और तो हमारी अपेक्षा है कि इसमें इंटरेक्शन हो। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, आज एक ही लोग आए हैं। तो इसको इंटरेक्टिव बनाइए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं ही बोल रहा हूँ, एक तरफा संवाद हो रहा है। इंटरेक्टिव सेशन है, तो उसके नाम को चरितार्थ करने के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बीच में अनम्यूट करके पूछ लीजिए। और ये हमारा पहला सेशन है, और ये सेशन मोस्टली हमारे वीक 1 के कंटेंट पे आधारित है। तो वीक 1, फर्स्ट वीक के जो लेक्चर्स हैं या जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अगर आपने सॉल्व किए हैं, लेक्चर्स देखे हैं, उसमें अगर आज आपको कोई डाउट है या उससे संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Actually, sir, I couldn't finish all the lectures of week 1. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा हिंदी बहुत खराब है, ओके, तो ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। yeah. सो we will try to keep it bilingual, because I think most of the students, those who are joining this course, uh, most of them will be from Hindi background, because this particular course is in Hindi, right? Yes, sir. So we will try to keep it bilingual, okay? Okay, sir. So slides, the lecture slides during the lectures you must have seen, most of them are in English, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So did you feel any difficulty in the lectures? Uh, I felt difficulty in the examples and small problems, sir. Like the basic theory was easy, Okay. but as it came to little bit more depth, for example, the pressure type questions and all, it was little bit hard. Okay, no problem. So whatever problem you are having, we can discuss it here. And
If you feel any difficulty in Hindi, just let me know and we can discuss in English as well. And there are very good lectures in English as well. So I will also recommend you to visit those lectures, right? And of course, you Okay, can sir. keep continuing these lectures. Okay. Yes, sir. So Karan have also joined. So if you can please quickly introduce yourself and which course you are doing, so it will be better for us so that we can, prepare the content that fits your purpose well. Okay. So you are Okay, sir. undergrad student. Yes, sir. I'm undergraduate student. My name is Hasini, and I'm studying in New Horizon College of Engineering in Mechanical Engineering first year. Okay. And Karan, can you please unmute yourself? Good evening, sir. I am Karan Uike, and I am a student of BTech in Mechanical Engineering in Bansal Institute of Science and Technology, Bhopal, in second year. Okay. 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 Thank you. And I am Saurabh, and I am working at IIT Kanpur, and I will be taking these live sessions on every Tuesday. Okay. So Karan, you are comfortable in Hindi or English? We will try to keep it in, bilingual, because many people are not from Hindi background and many people are from Hindi background. That's why they are doing this course. But anyway, and Yes, sir, I'm comfortable in both. okay. Okay. So this course, it is 12-week course, and today we'll be discussing some concepts and some questions related to week one. Okay. So in week one, this was an introduction, basic concepts. Most of them you have already studied in your class 12th. Okay. So I don't think there should be much difficulty, but if you have any, don't hesitate. Okay. You can just unmute yourself, and whatever doubts that are not in my slides, and if you have doubts while watching lectures or solving assignment or any doubt that is related to week one, you can unmute yourself and ask. Okay. Don't think that these discussions should be limited to these slides that I am showing. Okay. So it can be outside from these lecture, these slides as well. Okay. Yes, sir. Okay. So I thought many students will be from Hindi background, and the slides in the lectures, most of them were in English. So I thought, okay, I should translate it in Hindi so that those are from those who are coming from Hindi medium, they could relate it more. But anyways, no problem. So thermodynamics, okay, so it is made up of two words, therme and dynamics. Okay. So therme means something related to heat, and dynamic something related to power, right? हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी. ऊष्मा आप जानते हैं हीट को कहते हैं, और गतिकी जो कि किसी शक्ति या कार्य से रिलेटेड है. ठीक है. तो दोनों शब्दों को मिला के बन जाता है हमारा ऊष्मागतिकी हिंदी में, और थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. तो ये हीट और पावर इन दोनों का इंटरचेंज है. आप हीट को पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर को हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. पावर माने मैकेनिकल पावर. ठीक है. तो उसकी ये साइंस है. सो हियर यू कैन सी दिस एग्जांपल. This electrical to mechanical energy, you have a blender or mixer. So what you provide some electrical energy, and because of there is some motor, and that motor is rotating, so you are getting some rotating uh, energy. Okay. So that is basically mechanical energy. Also you have heaters, right? Electrical heater. So in heater you're providing electricity and you're getting thermal energy, right? Heat. Okay. So all these are the examples of energy conversion. Okay. So what is importance of thermodynamics? Why it is important? It is important because it is used in all the domains of science. Okay. And since it is an engineering thermodynamics course, so we will be mostly focusing on engineering examples, but it is used everywhere. Okay. So in engineering thermodynamics, we are focusing on engineering aspect, but thermodynamics is very vast subject. Okay. So concepts of thermodynamics are used like everywhere. In physics, these are used. In machine learning, these are used. Okay. Material science, these are used. Okay. So we will not go very deep in very, abstract type of concepts. We will be focusing on mainly on engineering type of concepts. For example, engines, you have your car engine, motorcycle engine. Okay. So
engines, they have certain efficiency. Okay, for example, you are providing 1 liter of fuel. So 1 liter of fuel can produce some amount of energy, but your engine will not produce that exact amount of energy. Some energy will be wasted. Okay, so we want more and more energy extraction from that given amount of fuel. Okay, so there is something called efficiency, right? I hope you are familiar with that. So we want to increase that efficiency. Okay, also we want to reduce the emissions from the exhaust. Okay, another examples can be related to your power plants. Okay, renewable energy, all these fields, they require knowledge of thermodynamics. Okay, so here it is written prakriti ke maulik niyam, so that means fundamental laws of nature. So basically we are concerning more about thermodynamic laws of thermodynamics. Okay, so you should understand one thing. When we are saying fundamental laws, one very important thing you should keep in mind is that you cannot drive fundamental laws. Okay, so if someone says you, okay, drive the first law of thermodynamics, drive the second law of thermodynamics, drive the 0th law of thermodynamics, you cannot drive these laws. Okay, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है. क्यों डेरिवेशन नहीं है? बिकॉज दे आर फंडामेंटल लॉज. वी ऑब्जर्व द नेचर हाउ इट इज वर्किंग. हमने उसको बहुत ध्यान से देखा और हमने देखा कि ये सर्टेन वे में काम कर रही है. ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कुछ नियम बनाए और वे नियम हमारे ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, हमने बस देख के बनाए हैं ये. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ड्राइव कर सकते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? कैन यू नहीं ड्राइव सर. द फर्स्ट लॉ? यू कैन नॉट ड्राइव, राइट? यस सर. तो कोई भी फंडामेंटल लॉ होगा आप उसको ड्राइव नहीं करेंगे. ठीक है, हाँ, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, उस मैथमेटिकल फॉर्म को आप अनदर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है F इक्वल टू ma, ये एक फॉर्म हो गया मैथमेटिकल फॉर्म. आप इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो दूसरा फॉर्म हो गया. ठीक है, तो आप मैथमेटिकल फॉर्म को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते, किसी दूसरे फंडामेंटल लॉ से ड्राइव नहीं कर सकते. और अगर आप उसको किसी दूसरे फंडामेंटल लॉ से ड्राइव कर सकते हैं तो फिर वो हमारा लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं होगा. ठीक है, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसी दूसरे लॉ से, फिजिक्स के दूसरे लॉ से अगर ड्राइव कर दें तो फिर ये नेचर का फंडामेंटल लॉ नहीं रह जाएगा. फंडामेंटल माने कि ये फंडामेंटल है, इसको आप कहीं और से ड्राइव नहीं करेंगे. ओके, एनीवेज, सो 0th law of thermodynamics you have studied, right? First law of thermodynamics says that energy cannot be created and it cannot be destroyed. Okay, so it is basically the statement of conservation of energy. Okay, it is a simple statement, but in mathematical form, assuming certain limitations, you can write some mathematical form. Okay, so whenever you are writing a mathematical form, you should keep in mind that you have taken certain assumptions. Okay, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नेचर हमारी काम करती है ना, उसमें बहुत सारे तरह के इंटरेक्शन होते हैं. वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होंगे, मैकेनिकल से रिलेटेड इंटरेक्शन होंगे, ऑप्टिक्स से रिलेटेड इंटरेक्शन होंगे, बहुत सारे इंटरेक्शन होंगे. और हर इंटरेक्शन कहीं ना कहीं एनर्जी और ये पावर वाले जो मामले हैं उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा लॉ लिख दें जिससे सारे इंटरेक्शन को आप लिख पाए, तो वो लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सर्टेन अजम्पशंस ले लेते हैं और उन सर्टेन अजम्पशंस के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं. ठीक है, तो जब भी अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस फॉर्म के पीछे अजम्पशंस क्या क्या है. कोई आपने लॉ पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ लिया Q इक्वल टू U प्लस W, तो ये कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल W को आपने PdV लिख लिया, तो ये क्या हमेशा वैलिड है? कुछ अजम्पशन होंगे इसके पीछे, तब ये जाके ये वैलिड होगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो अपने बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ओके, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सो इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
Second law says that even though energy cannot be created or it cannot be destroyed, it can be converted from one form to another form, but there are certain limitations. Okay. For example, you have this hot coffee and you have kept it in a very cold environment. Okay, its temperature is, let us say, 100 degree or 70 degree here, and your room temperature is 20 degrees Celsius. So what will happen? This coffee will lose some heat to the environment. But okay, so first law is, satisfied. Energy is conserved. Whatever energy this coffee is losing, that is going to environment. But if you say automatically from environment, some energy, it should be added to coffee, automatically it will not happen. Even though the first law is still satisfied, even though the first law is still satisfied, but second law puts some restrictions that when energy can be transferred from one form to interchange from one form to another form. Okay, so there is called quality of energy. Okay, there is thermal energy, there is electrical energy, mechanical energy, different types of energy. So there is one more term called quality of energy. So it says that energy can be converted from high quality energy to low quality energy completely, 100%. But if you want to convert that low quality energy to high quality energy, you cannot convert that 100%. Okay, ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, हम वो सारी स्टोरी पढ़ेंगे कभी ना कभी, बट आज एक ओवरव्यू जैसा है. ठीक है, डू यू हैव क्यूरियोसिटी कि हीट में ऐसा स्पेशल क्या है कि हम उसको पूरा मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ तो उसमें स्पेशल होगा ना. हीट एनर्जी को आप पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में पूरा पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ तो ऐसी खास बात होगी कि वो हीट में या थर्मल एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐसी एक स्पेशल चीज है जो उसको पूरा पूरा मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होने दे रही है. वो चीज क्या है वो हम आगे समझेंगे. ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अनदर थिंग इज योर सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय परिवेश. ठीक है, तो जिस चीज के ऊपर में आप फोकस कर रहे हैं, जिस चीज को आप स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाता है. सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं उसके आसपास या कहीं पूरे यूनिवर्स में, सिस्टम के अलावा वो सारी इसकी सराउंडिंग कहलाती है. और एक बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, वो हमारी बाउंड्री कहलाती है. अब ये बाउंड्री हमारी रियल में हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है. ठीक है, और जब भी आप बाउंड्री बनाएंगे, रियल बनाएंगे या इमेजिनरी बनाएंगे, उस बाउंड्री की थिकनेस 0 होनी चाहिए, आइडियली 0 होनी चाहिए. क्यों 0 होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक सराउंडिंग होना चाहिए, और दोनों को मिला के यूनिवर्स बनना चाहिए. अगर बाउंड्री की ही कुछ थिकनेस हो जाएगी तो ये तो फिर अलग एक दूसरा सिस्टम जैसे बिहेव करेगा बाउंड्री. ठीक है, तो बाउंड्री की थिकनेस जो है आइडियली होनी चाहिए 0. ठीक है, सिस्टम्स के आपने टाइप पढ़े होंगे. क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, मास ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ये हमारी बॉटल है, तो इसका ढक्कन बंद है, तो अगर आप इसको रख देंगे किसी ठंडे एनवायरनमेंट में तो पानी ठंडा हो जाएगा, गर्म जगह पे रखेंगे पानी गर्म हो जाएगा. तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन क्योंकि उसका ढक्कन बंद है तो पानी जो अंदर है वो अंदर ही है, बाहर से कोई पानी ऐड नहीं कर रहे हैं आप और अंदर से निकाल नहीं रहे हैं, तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. दूसरे टाइप के सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में आप मास भी ट्रांसफर कर सकते हैं और हीट भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरे सिस्टम होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. उसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना मास ट्रांसफर होता है और ना वर्क ट्रांसफर होना चाहिए आइडियली. ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप सोचते रहिए दिमाग में कि कौन कौन से सिस्टम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कौन से सिस्टम हमारे क्लोज सिस्टम में आएंगे, कौन से ओपन सिस्टम में आएंगे, और कौन से सिस्टम किसी और टाइप के कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, अब जो सिस्टम होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल उसका कुछ मास होगा, उसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा. ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टी है, इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं दो प्रॉपर्टीज में, एक्सटेंसिव में और इंटेंसिव में.
ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आपको पता है, अगर पता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर नहीं पता है तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिस्टम है, उसके पास कुछ मास है, आपने सिस्टम को 2 बराबर भागों में बांट दिया, उसको डिवाइड कर दिया हाफ एंड हाफ, तो अगर वो प्रॉपर्टी भी हाफ हो जा रही है या डिक्रीज हो जा रही है तो फिर हम कहेंगे कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सिस्टम है, उसमें मास एम था, आपने 2 हिस्से कर दिए, तो पहले एक हिस्से का मास हाफ एम हो जाएगा, दूसरे वाले का भी हाफ एम आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर हाफ नहीं होगा। ये नहीं कि आपने 2 हिस्से कर दिए तो पहले 100 डिग्री टेम्परेचर था फिर बाद में 50-50 हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर नहीं बदलेगा, इसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो इंटेंसिव हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कोई भी मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप एक सिस्टम देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, लेकिन बीच में खूब सारी खाली जगह है, ये एम्प्टी स्पेस है ना, वाइड है, ये खाली एम्प्टी स्पेस है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस जगह में जहां पर मैं ये ऐसे, शायद लेजर मैं अगर यूज कर पाऊँ, हाँ, ये जहां पर मैं अपना पेन घुमा रहा हूं, इसमें जहां पर पार्टिकल है वहां पर डेंसिटी कितनी है? बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेटेड मास है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी। लेकिन जैसे ही मैं पार्टिकल से बाहर निकलूं और पूछूं इस वाइड स्पेस में डेंसिटी कितनी है, वहां पर 0 होगी। पार्टिकल के ऊपर में लगभग इन्फिनिटी जैसी है और बाहर निकलती है लगभग 0 जैसी है। तो आप चीजों को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इस पूरी चीज की डेंसिटी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो हम मान क्या लेते हैं कि भले ही ये पूरा जो हमारा मटेरियल है, सिस्टम है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके बीच में खूब सारा एम्प्टी स्पेस है, बट स्टिल वी विल एज्यूम दैट दिस मैटर मटेरियल और आवर सिस्टम, इट इज कंटिन्यूअस। ओके, देयर इज नो वाइड स्पेसेस, वी आर जस्ट एज्यूमिंग। व्हाई वी आर एज्यूमिंग? सो दैट वी कैन डिफाइन certain properties. Okay, we can define certain point functions. Okay, so there is something called Knudsen number. Okay, so I will encourage you to just read about this. So what that says, if this distance between these two particles, if it is of order of lambda, and the characteristic length of your system is, let us say, L, then this lambda by L, okay, so this should be less than some number. Okay, so this should be less than some number. So what is that number? That you should figure out. Okay, so अगर अपना सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम को हम एक कंटिन्यूअस सिस्टम मान सकते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम कंटिन्यूअम मानेंगे। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअम मान लेंगे तो आप इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पाएंगे, डेंसिटी डिफाइन कर पाएंगे, इसका वॉल्यूम डिफाइन कर पाएंगे, प्रेशर डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, पार्टिकल्स के बाहर निकलते हुए डेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए। ठीक है, स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। स्टेट एंड इक्विलिब्रियम क्या है? जो स्टेट है वो बेसिकली उसकी स्टेट को बताती है। स्टेट माने जब उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हो। ठीक है, उसका फिक्स्ड टेम्परेचर है, फिक्स्ड प्रेशर है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे हाँ कि हमने स्टेट को डिफाइन कर दिया। व्हेन वी डिफाइन ए स्टेट, देन बेसिकली वी आर giving some numbers to the properties. Okay, we are giving some number to pressure, to volume, to mass. Okay, and there is something called equilibrium. So equilibrium means there are no changes. Okay, so if a system is in a thermodynamic equilibrium, so in that case system should have all these type of individual equilibrium as well. When system is in a thermodynamic equilibrium, so it should be in thermal equilibrium. Thermal equilibrium means there should be no temperature gradient. Okay, temperature should not change. Okay, system should be in mechanical equilibrium, and it should be in chemical equilibrium. Chemical equilibrium means chemical composition should not change with respect to time. Okay, and there is something called state postulate. So can you explain what this state postulate is, why it is important? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेट पोस्टुलेट? ये मतलब
मीनिंग क्या है स्टेट पोस्टुलेट का? कोई भी एक बताइए कि स्टेट पोस्टुलेट क्या कहता है? Sir, the number of properties which is required to fix the state of the system. यस, वेरी गुड। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी, कुछ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मास एंड वॉल्यूम बता दिया, फिर आप डेंसिटी को इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी है ये मास और वॉल्यूम का फंक्शन हो जाएगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कितनी चाहिए एक सिस्टम को पूरा पूरा डिफाइन करने के लिए, वो हमको पता चलता है स्टेट पोस्टुलेट से। ओके, सो टू इंडिपेंडेंट properties, intensive properties are required to define a simple compressible system. Okay, एक दूसरी चीज शायद लेक्चर में नहीं डिस्कस करी गई, तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं, कैसे ऐड होता है पेपर। सॉरी, there is a rule called Gibbs phase rule. So Gibbs phase rule, it says that F is equal to 2 plus C minus P. Okay, so F here is, it is the degree of freedom of system. Okay, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए स्टेट। ओके, और सी क्या है? सी इज द नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। क्या हो गया उसको? केमिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। सो केमिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कहने का मतलब है, अब एग्जांपल लीजिए वाटर का। वाटर, इट इज इन लिक्विड स्टेट एंड इट कैन बी इन स्टीम state, gaseous state. Okay, and we can also have a mixture of liquid water and steam, but the chemical composition of steam and the liquid water both are same, right? It is H2O. Okay, so it is just one independent component, not two components. Okay, but if you have mixture of water and ethanol, let us say, then you have two chemically independent components. Okay, how many chemical compounds you have? Okay, so that is C. And P, it is number of phases in equilibrium. Number of phases in equilibrium. Okay, so for example, if you have a cylinder, in this cylinder, let us say you have nitrogen N2. Okay, so how many intensive properties will be required to define the state of the system? This is piston cylinder arrangement. How many properties will be required? Temperature, pressure, actually two are necessary, sir. Two are necessary, right? F is equal to 2 plus C. How many components are there? One component, nitrogen. Okay, minus number of phases. How many phases? It is nitrogen gas. Okay, let us say it is nitrogen gas. So minus 1. So 2. So two independent intensive properties are required to define this state. So this system is called simple compressible system. Okay, so to define
a simple compressible system completely, we require two independent intensive properties. Okay, but let us say you have mixture of water and steam, both are in equilibrium. Okay, so this is mixture of water liquid, okay, water liquid plus steam in equilibrium. Then how many independent properties will be required to define this system? F is equal to 2 4, plus sir. 2 plus how many components are there? Only one component. Water and steam both have same chemical composition. So 2 plus 1 minus how many phases? 2 phases, 2. liquid phase and gas phase. Okay. So only one property will be required. Okay. Okay, sir. So how interesting it is. When we have only one phase, we are requiring two, independent intensive properties. But when we have two phases, liquid and gas, we are requiring only one independent intensive property. Okay. So depending on how many chemical components are there, how many phases are there, we can tell how many independent intensive properties will be required. Okay. And for a simple compressible system, we require only two independent intensive properties. Okay. ठीक है. जब आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ स्टीम टेबल देखने पड़ेंगे कई बार. ठीक है. तो स्टीम टेबल आपने देखे हैं? स्टीम टेबल आप किसी भी थर्मोडायनामिक्स बुक की अपेंडिक्स में मिल जाएगा या फिर अलग से भी आते हैं. Yes, sir. Yes, हाँ. sir. सर तो वो आपने बहुत सारे स्टीम टेबल देखे होंगे. आपने सैचुरेटेड स्टीम टेबल देखे होंगे, फिर उसमें कुछ सुपर हीटेड स्टीम टेबल होंगे, है ना? Yes, sir. हाँ. तो जो सैचुरेटेड वाले होते हैं वो बेसिकली वाटर और स्टीम का मिक्सचर होते हैं. वाटर और स्टीम का मिक्सचर होते हैं. तो उसमें हम लोग क्वालिटी ऑफ मिक्सचर डिफाइन करते हैं, है ना? क्वालिटी ऑफ मिक्सचर. तो क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर 100% क्वालिटी है मिक्सचर की तो उसमें 100% स्टीम है. अगर 50% क्वालिटी है तो इसका मतलब 50% स्टीम है, गैस है, और 50% वाटर लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है. इस तरह से हम उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. तो ये वाटर लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम में होते हैं. तो हर प्रेशर के लिए फॉर एवरी गिवन प्रेशर you will have a temperature. Okay, we call that saturation pressure. So for a given saturation pressure we will have a single saturation temperature. ठीक है. अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा. वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. ठीक बात. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना इस वाले चैम्बर में, इसका प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर आप तब भी इसका बढ़ा सकते हैं. लेकिन जब इक्विलिब्रियम में होगा तब केवल एक प्रॉपर्टी से पूरा सिस्टम डिफाइन हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन वाला जो सिस्टम है ना, इसका प्रेशर मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया 10 बार या फिर 10 किलो पास्कल आपने फिक्स कर दिया. आप इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा बस उसके लिए. आप इसका टेम्परेचर डबल कर दीजिए, वॉल्यूम भी डबल कर दीजिए, है ना? आप टेम्परेचर मान लीजिए पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, आप 100 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बस वॉल्यूम आपको डबल करना पड़ेगा, है ना? आप प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वेरी कर पा रहे हैं. लेकिन जब ये वाटर लिक्विड वाटर और स्टीम का मिक्सचर होगा तब आप प्रेशर और टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके. तो ये गिब्स फेज रूल आपको पता होना चाहिए. और गिब्स फेज रूल से आप सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम के लिए हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विल बी रिक्वायर्ड दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस गिब्स फेज रूल. ओके. Now we have zeroth law of thermodynamics. It says that if system A is in thermal equilibrium with system B and system A is in thermal equilibrium with system C, then B and C they will be also in thermal equilibrium. Okay. And this zeroth law of thermodynamics, this is the basis
for your thermometer. Okay. Yes, sir. Now we have processes and cycles. So processes is basically a process of going from one state to another. Okay. For example, you have state 1, you have state 2, and you're going from state 1 to state 2. And in between you will have a lot of points. Okay. In between you will have a lot of points. And number of these points will be infinite. Okay. So this whole, if you join all these points, infinite number of points, you will get a path. And this is called process path. Okay, you are going Yes, from sir. 1 to 2. But if you also come back from 2 to 1, you will complete this cycle. Okay, you will get a cycle. Okay, sir. Okay. And quasi-static means a cycle or a process that is infinitely slow. Okay. And at all the points, system it is in thermodynamic equilibrium. At all the points, it should be in thermodynamic equilibrium. Okay. Then it is reversible. Steady Yes. state flow. Steady state flow means whatever amount of mass is going, it is coming out. Okay. Whatever heat it is going in and heat going out and the heat being accumulated, that will be balanced. Okay. So in steady state flow process means properties will not change with time. Properties will not change with time. But it can change with space. Okay. Okay. Yes, sir. 1 second, sir. So the heat which is going in and out and the heat which is um in the system will be in equilibrium. No. See, heat can go in, it can come out, and also there can be some heat production inside. Okay. Okay, sir. But the thing is, temperature should not change with time. Please, Okay, sir. what I mean to say is that properties will not change with time. Okay. Heat is not a Properties. property. Okay. Properties will not change with time. Okay. So that's what I have written. Properties, they will not change with time. Okay, sir. हीट ज्यादा अंदर जा सकती है और कम बाहर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है. हीट का सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल योर इंटरनल कंबशन इंजन, तो आपके सिस्टम के अंदर में कंबशन हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. तो हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है और हीट सिंक भी हो सकते हैं. तो हीट जरूरी नहीं कि वो जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी कौन सी, टेम्परेचर है प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं वेरी करेगा, तो वो स्टेडी स्टेट फ्लो है. Yes, sir. ठीक है. और ये टाइम के साथ नहीं चेंज होने चाहिए, स्पेस के साथ चेंज हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हाँ. है. स्पेस के साथ चेंज हो सकते हैं, टाइम के साथ नहीं चेंज होने चाहिए. अब ये एनर्जी और वर्क, जो वर्क किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क के माध्यम से ट्रांसफर हो सकता है ना, मैकेनिकल वर्क की तरीके ट्रांसफर हो सकता है. ओके. तो ये जो एनर्जी और वर्क है, ये पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है. इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं. पॉइंट फंक्शंस. और प्रॉपर्टीज. So point function or properties, they have fixed value, a single value at a given point. Okay. For example, you have this system. So at this point, okay, at this state, you will have a fixed value of temperature and pressure, or you can say temperature and volume. Okay. Yes, sir. अब आपने पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर किया. ठीक है. आपने पिस्टन को ऊपर नीचे कुछ चेंज किया और आप दूसरी स्टेट में पहुंच गए, वहां पर इसकी कुछ अलग वैल्यू होगी. ठीक है. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये पाथ पे नहीं डिपेंड करेंगे. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स का अगर हम छोड़ दें, सिंपल आप टू वेरिएबल मान लीजिए, एक्स और वाई. ठीक है.
एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ओके, वाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आपने कार्टेशियन प्लेन देखा, ये हमारी एक्स Yes, sir. एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। और कोई एक फंक्शन हमारा है जेड जो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। Assume that z is a function of x and y, okay, so at all the points, at this point, okay, at this point x will have some value, sorry, this point will have some value of x, also this point will have some value of y, okay, okay. Yes, sir. So since you have fixed the value of x and y, and z is function of only x and y, and if the z is single valued function, then z will also be a property, okay. So for example, you have this Cartesian plane or any plane, okay, and if you go from this point to this point, let us say coordinate of this point is 2,3, and this is, let us say, 9,11, okay. So no matter from which path you are going from this point to this point, it will have, fixed value. So if you define a function like z is equal to something, okay, let us say x square y, okay, so at this point z will have some fixed value, okay. So z will be how much? 2 square times 3, right? And here also z will have some fixed value, okay. हाँ, So 9 to square check, times 11. so to check whether a function is point function or not, we define something called exact differential, okay. So exact differential means if you change the value of x and y a little bit, very small, okay, then what will be change in z, okay. If you change the value of x by dx and y by dy, okay, then what will be the change in value of z, okay. Then z, Yes. change in z, it will be defined as, first you differentiate z only with respect to, let us say, x, assuming that y is constant, then just multiply the change in x plus, then you differentiate z assuming that x is constant, you are only differentiating with respect to y, okay, and multiply the amount of change in y. So like this you can define the change in z, dz, okay. And you can write it as, let us say, this thing you can write it as m, this whole dou z by dou x, this is m dy plus n, sorry, dx and n dy, okay. So m del m by del y, this should be equal to del dou n by dou x, okay. Or you can say that del square z, ये बात समझ आई आपको? इसमें क्या है कि z कोई फंक्शन है, आपने पहले उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर उसको आपने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और दूसरी बार आपने उसी z को पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और जो भी आपका आंसर आया उसको आपने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। आपने बेसिकली ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज करने से इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है, तो जो हमारा z है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये So जो if हमारा, it is equal, it is exact it is, differentiation. yes, it has exact differential, we call that it has exact differential. So for Okay, example, sir. और we अब have, और अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ये पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है? हाँ, अब ये पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है? ये पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट फंक्शन क्यों हो जाएगा, अभी इस पे थोड़ा सा करते हैं डिस्कशन, बट एक एग्जांपल Yes, sir. लीजिए। आपने z को x स्क्वायर y माना था, आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो मतलब ये डेल z बाई डेल x हो जाएगा 2xy, है ना, और डेल स्क्वायर z बाई डेल x, एक को आपने डिफरेंशिएट किया, फिर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2x, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ये जो समझ आ हमारा गया। z, हाँ,
फिर अब अगली बार हम इसको z को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर आप इसको, जो भी हमारा आंसर आया है एक्स स्क्वायर, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो देखिए दोनों बार ये 2x ही आ रहा है ना, ऑर्डर चेंज करने से। तो इस तरह के जो हाँ फंक्शन हाँ होंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। तो जो हमारी थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल उनके होते हैं, और वो पॉइंट फंक्शन होते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो मतलब हीट एंड डायनेमिक्स मींस पावर। कंटिन्यूम जो हाइपोथेसिस है, इसमें हम एज्यूम करते हैं दैट मैटर इज ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस, ignoring there are gaps. Okay, there are gaps but we are ignoring them because there are high number of molecules. Okay, and we have a very big system. Density, you know how to define the density, you know how to define a specific volume. Specific volume is just 1 divided by density. Okay, and specific gravity, you know what is specific gravity? Specific gravity is the ratio of density of any substance to the density of water. Okay, for example, if you want to define the specific gravity of mercury, then it will be equal to density of mercury divided by density of water. Okay, like that you define a specific gravity. We have different type of systems. We have open system. Okay, we have closed system. In open system we can transfer both mass and energy. In closed system we can transfer only energy, not mass. And in isolated system we cannot transfer anything. Okay, not even work. And there are adiabatic systems. So adiabatic systems, you can not transfer mass. Okay, so it is type of closed system. You cannot transfer mass and you cannot transfer heat, but you can transfer work. Okay, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो बॉटल है ना, ये वाली, इसमें आप हीट नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड है, और मास भी नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, बट आप इसको सेक कर सकते हैं ना। तो सेक करने से एक तरह से आप उसमें वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओके हमारे सर। एडियाबैटिक सिस्टम होते हैं। Zeroth law of thermodynamics says if A and B are in equilibrium with C, then A and B both are in equilibrium. Okay, so like that we define thermometers. First law of thermodynamics says that energy is conserved, cannot be created or destroyed. Okay, second law says that processes occur in a specific direction, right? Heat naturally flows from high temperature to low temperature. Okay, never reverse. Of course reverse is possible, but only with the help of some external agent. जो आपकी रेफ्रिजरेटर होती है वो ठंडी चीजों को ठंडी करती है, लेकिन उसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। ओके, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ये कार जा रही है ना, कार, तो कार के सारे मॉलिक्यूल आगे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये अगर स्टोन नीचे जा रहा है तो इसके सारे पार्टिकल नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और अगर इसी डायरेक्शन में नहीं भी जा रहे हैं, उनमें कुछ फॉर्म होगा। ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो सारे पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहे होंगे। तो एक ऑर्डर है इसमें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे रैंडमली नहीं भाग रहे हैं इधर उधर। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है ये हाई क्वालिटी एनर्जी होती है। ठीक है, यस सर। और जो हीट होती है, हीट में क्या है कि पार्टिकल इधर उधर रैंडमली भाग रहे हैं, कोई पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये लो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और जो मॉलिकुलर लेवल पे चीजें हो रही हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, और ये ऑर्डर नहीं होती। तो अगर किसी चीज की हीट मतलब जो हीट है दैट इज बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये सारा है इसमें, टोटल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, सो ये उसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। तो अच्छा, इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है, तो केवल इंग्लिश को रीड करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन ए ब्लेंडर, सो दिस ब्लेंडर operates, electrical energy is primarily converted into which form of energy? Only thermal energy, mechanical and thermal energy, potential and potential energy, or chemical energy? Mechanical and thermal energy. Yes, mechanical and thermal energy. Because of friction there will be some heat generation, or of course mechanical energy. And second question, it says that if the specific gravity of mercury is 13.6 at 0 degrees Celsius, what will be its density? Very simple. Specific gravity is defined as the density of any substance
to the density of water. Okay, and the density of water, you know, density of water, it is 1000 kilogram per meter cube, है ना? Yes, sir. Specific gravity of mercury, okay, Hg. So it will be density of mercury to the density of water, and it is given 13.6. Okay, so that will be equal to density of mercury to 1000 kilogram per meter cube. Okay, so density will be mercury, it will be 13,600 kilogram per meter cube. Okay. 1 second, sir. Yes, sir. Okay. Now we have question related to temperature scale. It is saying what is the correct relationship between the Rankine scale and the Fahrenheit scale? This option B, sir. Option B is fine. Okay, but for example, you have given this figure. Okay, from this figure, can we derive a mathematical form for converting the temperature in Fahrenheit into the temperature in Rankine? Yes, sir. Now, how will we proceed? Sir, I don't know how to frame the sentence here, but the absolute zero, when it is in Rankine, it is 0, but for Fahrenheit, it is negative minus 459.67 degree Fahrenheit. So if we bring Fahrenheit also to 0, then we have to add 459.67 so that it can be equal to Rankine scale. Okay, so you are saying that when temperature in Fahrenheit is 0, then it will be 459.67 in Rankine? Yes, sir. It is not like that. It is not like that. Acha. Okay. We will just try to write something very basic. Okay. अच्छा, ये जो हमारे टेम्परेचर के स्केल होते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हम कुछ रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं. ओके, रेफरेंस टेम्परेचर कहने का मतलब ये है एक ऐसा टेम्परेचर विच यू कैन प्रोड्यूस वेरी इजीली. ओके, फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आपने क्या लिया? पानी लिया, वाटर लिया, इसको बॉयल कर दिया. जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होने लगा वो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल दीजिए आप. कोई भी इसको रिप्रोड्यूस कर सकता है. आपके पास वाटर है, आप बॉयल कर लीजिए, कोई भी इसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, बहुत इजीली रिप्रोड्यूसेबल है. सिमिलरली आप वाटर को फ्रीज कर दीजिए, कोई भी फ्रीज कर सकता है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल है. तो इस तरह से जो इजीली रिप्रोड्यूसेबल मतलब इवेंट्स होते हैं, उनके टेम्परेचर को हम रेफरेंस टेम्परेचर ले लेते हैं. ओके, सो दैट एनीवन कैन रिप्रोड्यूस दैट, एंड these events will happen at a certain temperature only. Water will boil at 100 degrees Celsius, everyone knows that. Okay, so you can easily reproduce that. Okay, Yes, so sir. different temperature scales are defined based on different reference temperatures. For example, your Celsius scale or centigrade scale, that is defined only on this water stuff. Okay, water freezes at some temperature that we call 0 degree, and it boils at certain temperature that we call 100 degree centigrade. Okay, but different temperature scales use different reference temperatures. Anyways, and ये जो दो वैल्यूज हैं वो आपने डिफाइन कर दिया. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो को आपने यहाँ पर 0 बोल दिया, और जहां पर पानी फ्रीज हो रहा है उसका कुछ टेम्परेचर है वो आपने डिफाइन कर दिया, और बीच में आपने बहुत सारे इसमें छोटे छोटे वो बना दिया, डिवीजन. हाँ, ओके, सर. इसी तरह से दूसरे वाले में भी आपने सेम किया कि एक आपने दो रेफरेंस टेम्परेचर सेट कर दिए और बहुत सारे आपने डिवीजन क्रिएट कर दिया. अब ये जो डिवीजन है, देखिए लीनियर है दोनों में. अब बात ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं. लीनियर कहने का मतलब है कि ये एज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट इंक्रीज हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि 1 फिर 2 फिर 4 फिर 16 फिर 256, ऐसे नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, है ना. हाँ, सर. लीनियरली हाँ. इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये लीनियर स्केल है दोनों. ठीक है, तो ये हाँ. भी पहला वाला भी लीनियर है, दूसरा वाला भी लीनियर है. तो
इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो भी लीनियर होगा, हाँ ठीक है, वो भी लीनियर होना चाहिए। तो एक हमारा टेम्परेचर स्केल है रैंकाइन का और एक है हमारा टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट का। तो हमको बताना है कि इन दोनों में फंक्शन क्या है, मतलब जो रैंकाइन है दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ एफ, राइट। यस सर। एक सेकंड रुकते हैं। रैंकाइन स्केल में जो टेम्परेचर है उसको चलो वाई बोल देते हैं, ठीक है। हम्म। और इसमें फ़ारेनहाइट वाले में जो रीडिंग है उसको चलिए एक्स बोल देते हैं, ठीक है, ओके। हाँ अब y और x लीनियरली डिपेंडेंट है, तो y को आप mx प्लस सी लाइन की जो इक्वेशन होती है ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। m और c हमको पता नहीं है, ये हमको निकालने हैं। ये हम हाँ निकाल सकते हैं जो हमको दिया गया डेटा। पहला क्या दिया गया है, पहला हमको दिया गया है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो जब हमारा फ़ारेनहाइट में, सॉरी, जब हमारा रैंकाइन में जीरो है, देखिए रैंकाइन में जीरो है, तो इसका मतलब हमारा जब y जीरो वाई है जीरो है। हाँ तब x कितना है, तब x है हमारा माइनस माइनस फोर 500 फाइव एंड नाइन, हाँ कितना, 0.67। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं जीरो इजक्वल टू एम और x की जगह -459.67 प्लस सी। ये हमारी एक हाँ इक्वेशन होगी। और दूसरी हाँ इक्वेशन आप दूसरे पॉइंट के लिए लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में जब रैंकाइन कितना है 491.67 है, तो y इजक्वल टू 490, कितना था 491.67। और जब उस समय पे x कितना है, उस टाइम पे x 32 है, ठीक है। तो फिर से आप लिख सकते हैं हाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि 491.67 इक्वल टू एम, है ना, और x की जगह 32 प्लस सी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास दो हाँ इक्वेशन है और y और सॉरी m और c इनकी वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, है ना। हाँ। बहुत आसान है, इसको निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन से c इज इक्वल टू m m इंटू 459.67। पहले इक्वेशन से, सॉरी, पहले इक्वेशन से आप बोल रहे हो 459.67 m, ऐसा। हाँ और और इसको ये दूसरी सेकंड वैल्यू, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको। ये हो जाएगा m और 32m एक्चुअली, है ना, हाँ 32m प्लस 49, सर कितना, 32m 32m। ओ या ओके सर। 32m, ठीक है। 32m प्लस c की जगह हम रख सकते हैं 459.67m। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। m m 1 हो जाएगा। तो नहीं, 1 नहीं हो जाएगा m, हाँ मतलब चेंज कर सकते हो, बट कितना हो जाएगा, ये जोड़ देते हैं इनको, 32 प्लस 459.67, है ना। तो ये कितना हो रहा है, हम्म 491.67 m। हाँ हाँ, 1 हो गया जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो m हमारा 1 हो गया और c कितना हो गया, c हो गया 459 पॉइंट, सॉरी 67। 459.67, ठीक है। तो हमारा जो हमने लिखा था इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ तो यानी कि x क्या था, और सॉरी y हमारा था रैंकाइन स्केल में टेम्परेचर टी आर, है ना, और हाँ x था हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, ऐसा, प्लस हाँ सी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टी आर इक्वल टू एम कितना आया है हमारा 1, तो 1 ही रहेगा ये, एक एक फ़ारेनहाइट प्लस सी हमारा आ गया कुछ 459.67। तो हाँ इसमें ऑप्शन बी सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो इससे देखो एक चीज हमको ये पता चल रही है कि इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन है ना, ठीक है, उसकी लेंथ और इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन है उसकी लेंथ, ये दोनों बराबर हैं। मतलब एक डिवीजन जो इसका है फ़ारेनहाइट का, और एक डिवीजन जो इसका है, अ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फ़ारेनहाइट में अगर आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो रैंकाइन वाले में भी 1 डिग्री रैंकाइन इंक्रीज होगा।
हाँ ये जो आपने बात पहले बोली थी ना कि 469.67 इंक्रीज होगा रैंकाइन में जब हम फ़ारेनहाइट को 0 कर देंगे, आपने एकदम सही बात बोली थी। ठीक है, हाँ आपने एकदम सही बात बोली थी, लेकिन मैंने उसको बोला था कि ऐसा नहीं होगा। तो मैं गलत था, आप सही थे। मैंने ऐसा क्यों बोला था, वो इसलिए बोला था क्योंकि इस केस में m इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, हाँ सर। इस केस में m इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन अगर कोई दूसरा टेम्परेचर स्केल हो तो जरूरी नहीं कि m इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, हाँ तो इन जनरल ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों स्केल हैं, दोनों में हम कुछ वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो सेम वैल्यू इंक्रीज होगी। सेल्सियस और हाँ केल्विन सर। का सेम होगा। सेल्सियस में अगर आप 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 32 केल्विन भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो केल्विन हाँ और सेल्सियस डिग्री में वो संबंध है, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वो रिलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर m इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो ये बात आप ध्यान ओके सर। रखिए कि इन जनरल ऐसा नहीं होगा, बट क्योंकि फ़ारेनहाइट और रैंकाइन में एक ऐसा स्पेशल रिलेशन है जिसमें m इक्वल टू 1 है, तो ऐसा हो रहा है। हाँ सर। और सर एक बात है, हाँ, आर ऑल टेम्परेचर स्केल्स लीनियर और जस्ट रैंकाइन, फ़ारेनहीट एंड केल्विन आर लीनियर? मोस्ट एक्चुअली आई शुड से ऑल द यूजफुल स्केल्स आर लीनियर। मैंने जितने देखे हैं लीनियर देखे हैं, हाँ, नॉन लीनियर क्योंकि नहीं देखे। स्केल्स में सिर्फ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन देखे हैं, और हम्म, ये चारों लीनियर ही है। हम्म। तो और अब like all temperatures are linear, or like there is any other exception? मैंने भी यही सारे चार देखे हैं, और जितने देखे हैं वो सारे लीनियर देखे हैं। अब लीनियर Okay ही क्यों देखे हैं, आप खुद का एक टेम्परेचर स्केल बना लीजिए, उसको कुछ नाम दे दीजिए, अपने नाम के ऊपर दे दीजिए, उसको नॉन लीनियर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो यूजफुल होगा? अगर वो यूजफुल होगा तो लोग यूज करेंगे, वो पॉपुलर होगा। अगर यूजफुल नहीं हाँ होगा तो पॉपुलर नहीं होगा। अब ये वाले लीनियर वाले यूजफुल क्यों हैं? क्योंकि आपने वो ग्राफ देखा होगा, ये वाला ग्राफ आपने देखा होगा, जिसमें आपने लेक्चर आपने अगर देखा होगा, तो जहां पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा ना, है ना? यहाँ पे डॉट डॉट करके हाँ ये मिल हाँ जा रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है और जो थर्मोडायनेमिक्स जो फिनोमेना हो रहे हैं, वो लीनियर टेम्परेचर स्केल अगर आप यूज करेंगे तो आप उनको इजिली मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिख हाँ दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी या एमआरटी वट एवर इट इज, ओके। तो वहां पर अगर आपका टेम्परेचर स्केल लीनियर है, केल्विन है, इस केस में तो कम से कम हाँ केल्विन है, तो वो आपका ठीक ठीक इक्वेशन आसान रहेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं टेम्परेचर ये जो है ना इसको केल्विन नहीं लूंगी और मैं इसको कुछ अपना नॉन लीनियर स्केल ले लूंगी, तो ये जो फॉर्मूला है ना आप तब भी लिख पाएंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ सर। और है ना? यही मुझे नहीं समझ आया लेक्चर में, ये आइडियल गैस का। ठीक है, आइडियल गैस पे करते हैं डिस्कशन, अभी जो भी चीजें हैं वो खत्म कर लेते हैं फटाफट। ओके और सर। आइडियल गैस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कौन सी यूनिट में होना चाहिए, है ना? तो उस हाँ पे तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओके सर। फॉर एग्जांपल इसको आप कुछ नॉन लीनियर टेम्परेचर स्केल ले लीजिए। ठीक है, टेम्परेचर आपका कुछ कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर कुछ अलग फंक्शन यूज होगा, है ना? अगर आपने एक्सपोनेंशियल लिया है तो कुछ ना कुछ आपको ln वगैरह लगाना पड़ेगा, लॉग लिखना पड़ेगा, है ना? तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, उतना यूजफुल नहीं रहेगा। ओके सर। लीनियर वाले यूजफुल हैं क्योंकि वो मैथमेटिकली कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन दे रहे हैं फॉर डिफाइनिंग सर्टेन फिनोमेना। ओके, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन, इट सेज दैट according to state postulate how many independent intensive properties are required to completely specify the state of a simple compressible system? 2. Two. Okay, but in case of mixture of water and steam, one. It Right? depends on the हाँ, yes sir, 1. Number of phases, हाँ, yes sir, number of. number of chemically independent components. Okay, but for a simple compressible system it is one. 2 sir. Another, sorry, two. Another question, it says if the density of water in a lake is 1000 kilogram per meter cube, fine. The gravity Z is 9.81 meter square. What is the gauge pressure at a depth of 10 meters? So you know what is the difference between gauge pressure and absolute pressure? Not very sure sir.
I've seen the lecture though. Okay, so gauge pressure means, okay, actually the absolute pressure, let us say at this point, can you see this point at this level? What will be the pressure at this point? At this surface, free surface, there is some atmospheric pressure, right? At this point, you have one atmospheric pressure, right? Because above this water surface, you have some air, right? Yes, sir. तो एयर का भी प्रेशर होगा, तो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब आप नीचे आएंगे पानी के, तो यहाँ पर पानी की वजह से, वाटर की वजह से भी कुछ प्रेशर आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जितना आप नीचे आते जा रहे हैं ρgh उतना। तो ये हमारा जो टोटल प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके ओके, लेकिन Okay, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह लग रहा है। जो भी चीज एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस कर रही है, वट एवर system is there in the atmosphere, so all of those system will have some component because of this atmospheric pressure. तो हर बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखें हम, है ना? तो हर बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखने की बजाय जितना एक्स्ट्रा प्रेशर है वो लिख देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये होता है लगभग 10⁵ पास्कल, ठीक है? तो हो जाएगा 1,00050 लगेंगे, इतना पास्कल, ठीक है? लेकिन अगर आप 1 मीटर नीचे गए, अगर आप 1 मीटर नीचे जाते हैं, तो 1 मीटर नीचे में ρgh कितना होगा? रो अगर पानी का अगर आप मान लें 1000 और जी मान लें आप 10, और 1 मीटर नीचे जा रहे हैं, तो ये केवल इतना हो रहा है ना? 10,000, सॉरी, हाँ 10,000 पास्कल। हाँ। ये तो मैंने बहुत ज्यादा नीचे चले गए वाटर के, काफी गहरा हो गया, मतलब 1 इज स्टिल a big number and water has quite big this density. If it was simply a gas, then density will be very less. और अगर आप इसको जोड़ेंगे इसमें, तो ये देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना? हाँ। उसमें आप छोटी सी क्वांटिटी जोड़ेंगे तो फिर आपको एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगेगा। और जब सारी क्वांटिटी में आपको ये ऐड करना ही है, तो फिर ये क्वांटिटी क्यों बार बार ऐड करी जाए? हाँ। और एक दूसरी चीज ये भी है कि जब अपन इसमें मेजर करने के लिए ये लगाते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, तो एक साइड में एटमॉस्फेरिक इधर भी होता है, इसमें भी और इसमें भी होता है, तो केवल हाइट में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हाइट आ रही है, ठीक है? ये समझ रहे हाँ हैं मैं सर। क्या करना दिया, ये कुछ कुछ हाँ। ये सब, हाँ। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, ये हमारा गेज प्रेशर होता है, ठीक है? ओके सर, 1 सेकेंड लिख लेती हूँ। मैं ये भेज दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सारा PDF ये सब अपलोड कर देंगे। ओके सर। और ये जो लेक्चर है इसकी भी रिकॉर्डिंग मतलब अपलोड कर देंगे। तो कोई, अगर आप लिखना चाहें अपने रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, बट सारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे वी विल बी अपलोडिंग ऑल दिस कंटेंट। यस तो सर। ये पूछ रहा है कि गेज प्रेशर क्या होगा एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर्स। तो बहुत आसान सा है, मतलब पानी की डेंसिटी है 1000, आई एम नॉट राइटिंग यूनिट्स, ओके, एवरीथिंग इज इन SI यूनिट, and rho and G is 9.81, again SI unit, I'm not writing units, and 10 meters. Okay, you just multiply it and you will get something in pascals. Okay, so how many pascals? 9 8 1 1 2 3, कितना जीरो रहेगा 9 के बाद? 1 2 3 4 4, these many pascals. Okay, and if you want to write in kilopascals, it will be 9.81 kilopascal, है ना, just divided by 1000. Okay, हाँ सर। हाँ, ये मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। हाँ। Okay, it is saying that in a standard barometer, so this is called barometer.
Standard barometer, a pressure of 1 atm is equivalent to a column of mercury of what height? ये जो गैस है ना, ये गैस है, क्लोज्ड है ये, ठीक है। ये देखिए इसका जो कंटेनर है ये क्लोज है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसमें कांटेक्ट में नहीं है। तो गैस का जो भी प्रेशर है वो मान लीजिए प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 एटीएम। इसके अंदर में जो गैस भरी है 1 एटीएम पे गैस भरी हुई है। ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है, तो हमें ये निकालना है, सॉरी। तो जो भी ये एक्स्ट्रा चीज आएगी ना, रो ऑफ मरकरी इनटू जी, है ना, जी डी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी into h, that will be equal to 1 atm. Okay, and 1 atm is 10 to the power 5 pascal. Okay, हाँ sir. तो इसकी डेंसिटी हमें पता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जी इट इज, you can take some value, let us say 9.8. 9.81. h will be something and 10 to the power 5 pascal. तो h will be equal to, ये हमें बताना है 10 to the power 5 pascal divided by this whole stuff। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। टेन टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई इंटू 9.8। ठीक है, 0.7495. तो 75, सॉरी 0.75 मीटर। ओके, इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आ जाएगा 750 मिलीमीटर। तो इसमें 750 नहीं 760 दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर हो सकता है इन्होंने जी की वैल्यू कुछ और ली होगी या फिर इसकी डेंसिटी कुछ और ली होगी, बट इन दैट रेंज। ओके, ओके। Yes, sir. ये डायग्राम सही डायग्राम नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये बैरोमीटर का बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है। Okay, sir. ओके, तो ये डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। इसका एक दूसरा डायग्राम जो कॉन्सेप्चुअली बेटर होगा वो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए आपने एक एक कॉलम लिया, ठीक है, यू हैव टेकन ए कॉलम, इट इज जस्ट लाइक ए ट्यूब टाइप ऑफ थिंग। ओके, ठीक बात। आपने इसको मरकरी से भर दिया, यू हैव फिल्ड द मरकरी। ओके, ठीक, ओके, पूरा आपने Yes, मरकरी से sir. भर दिया एंड यू हैव टेकन अनदर वेसल, एक दूसरा आपने बर्तन लिया, इसको भी आपने मरकरी से भर दिया, ठीक। अभी आप क्या करिए, इसका जो ये है माउथ है इसको बंद कर दीजिए, है ना, बंद कर दिया आपने, और फिर आपने बंद करके इसमें डिप किया, ठीक है, आपने इसके अंदर में डिप किया। ओके, फिर आपने जो बंद किया था उसको हटा लिया। ओके, हाँ sir. जब जब आपने नहीं हटाया तो पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आपने उसको क्लोज करके रखा है, तो जो भी उसके अंदर मरकरी भरी हुई पूरी भरी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप हाथ हटाएंगे, यहाँ का नीचे जो आपने क्लोज किया था उसको हटा देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर कुछ पार्ट जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ sir. तो जो लेवल ओरिजिनली शुरू में ऊपर तक था अब वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। हाँ sir. और यहाँ पर क्या है, इस जगह में, इसके ऊपर में, इस जगह कुछ नहीं है, वैक्यूम है ये तो, है ना। Vacuum. हाँ.
वैक्यूम है तो यहाँ का प्रेशर तो जीरो होगा, हाँ जीरो प्रेशर होगा ना वैक्यूम में। वैक्यूम है तो आइडियली जीरो होना चाहिए वैक्यूम में। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है तो यहाँ पर जीरो प्रेशर होगा। ठीक है, हाँ सर। तो इस सरफेस पे अगर आप देखें, इस वेसल की सरफेस पे, इस पे क्या है, इस पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, हियर यू हैव 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हाँ ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी लेवल पे प्रेशर सेम रहता है अगर सेम लिक्विड है तो। ठीक है, तो जहां जहां ये ग्रीन लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इसके अंदर, जो आपका ये कॉलम था या टेस्ट ट्यूब टाइप की थी, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि इसके लेवल पे जो वेसल में मरकरी भरा है, ये क्या हो गया, हाँ उस ये कुछ गड़बड़ हो गया, बट इसके लेवल पे भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, ये हमारी खराब हो गई, वापस में। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पर प्रेशर जीरो है। ठीक है, इस जगह में प्रेशर है जीरो, आप नीचे जाएंगे तो वो ऐड होता जाएगा रो जी एच, है ना। हाँ तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि दिस इज, लेट अस से दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2। तो प्रेशर एट 0.1 इट इज जीरो, plus you add rho gh and then you reach level 2, and pressure at level 2 again it is how much, 1 atmosphere pressure। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरह से ये जो हाइट है हमारी, ये जो हाइट है इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक हाइट। ठीक है, ओके सर, 1 सेकेंड। अगर, ओके सर। हाँ, अगर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करें, आप मत करिए क्योंकि ये मरकरी ठीक नहीं है हमारे लिए, बट यस सर। कॉन्सेप्चुअली अगर आप ऐसे इमेजिन करें तो ये जो हाइट रहेगी ना, ये तो ये will be, this height will be corresponding to 1 atmospheric pressure, and if you have taken mercury as your liquid then this will be approximately 760 millimeter। ठीक है, यस सर। आपने मरकरी ही क्यों लिया, आप वाटर ले लेते, मरकरी तो बहुत खराब है, जहरीला है, वाटर ले लेते। वाटर में पता है क्या प्रॉब्लम होती है, वाटर में प्रॉब्लम ये होती है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो मरकरी से 13.6 इतनी कम है। हाँ तो ये जो इसकी हाइट होगी ना, वो 13.6 टाइम्स ज्यादा लेनी पड़ेगी। ये जो आपने 760 mm लिया है, वाटर के लिए आपको इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती, ये बहुत लंबी टेस्ट ट्यूब हो जाएगी। ये तो कितनी बड़ी टेस्ट ट्यूब हो हाँ जाएगी इसको देखते हैं, ये 10 मीटर के आसपास पहुंच जाएगी लगभग, है ना। 13.6 इंटू 760 mm कर लीजिए, देखो 10 मीटर पहुंच गई। 10 मीटर का आप प्रेशर नापने के लिए इक्विपमेंट थोड़ी बनाएंगे, है ना, वो यस सर। प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इसलिए अपन मरकरी यस। के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अगर अब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अब मान लीजिए प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पर इस सरफेस पे प्रेशर इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ से प्रेशर इसमें लगेगा और ये लेवल इसका बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो ये लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक हाँ है, सर। तो ये जो हमारा बैरोमीटर है काम मेजर करने के लिए ऐसे काम करता है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था रो जी एच इक्वल टू 1 atm, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, यस सर। ओके, यहाँ पर हमारा एक ही लिक्विड था। अभी दूसरा कह रहा है कि मल्टी फ्लूइड नैनोमीटर, सॉरी मैनोमीटर, it is saying that if 3 different liquid fluids are stacked, what is the equation for the total pressure at the bottom। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या होगा, तो बहुत आसान है, ऊपर में प्रेशर पी ऑप्शन ए। 18 है, हाँ, नीचे हाँ आएंगे तो इसकी वजह से जो आएगा रो जी एच वन, रो ऑफ फ्लूइड 1 H1, फिर रो जी 2 हाँ। है ना GH2, और यहाँ पर रो 3, सॉरी जी है GH3, और सबको टोटल कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। तो हाँ सर। फर्स्ट पार्ट सही होना चाहिए। ठीक है, ये वेंचुरी टाइप की चीजें आ गई। एयर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप if the mercury manometer shows a difference of 200 mm, तो ये जो हाइट है यहाँ पे ये 200 mm है।
व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी, तो ठीक है रो जी एच ही होगा, है ना, क्योंकि जैसे ये जो सेम फ्लूइड है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, ऐसे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, मान लीजिए ऐसे कुछ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रेड वाली दिख रही है, हाँ और यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट टू है, तो हम बोल देंगे कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट टू, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं सर। नहीं बोल सकते, ठीक है, हमारा कनेक्टिंग फ्लूइड सेम होना चाहिए तब बोलेंगे हम, ठीक है। अगर इन रेड लाइन इसी मरकरी वाले कॉलम के अंदर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर प्रेशर और 2 पॉइंट पर सेकंड पॉइंट पर प्रेशर, तब ये जाके बराबर होगा, ठीक हाँ है। सिमिलरली इस लाइन को अगर आप थोड़ा ऊपर कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पे इसका सरफेस है जस्ट वहां पे कर देंगे, वहां पर भी प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो P1 है और ये जो P1 है ये बराबर होंगे, ठीक है, ओके। आ, क्योंकि दोनों कनेक्टिंग फ्लूइड सेम है ना, हम फ्लूइड के बाहर नहीं गए, तो ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो प्रेशर एट पी ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट P2, ओके सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ओके सर। सर P1 के पास वो एक एटीएम है ना सर, लाइक द एटीएम प्रेशर विल बी देयर, बट P2 के पास वो डेप्थ भी है, तो रो जी एच भी एड अप करेगा ना? हाँ, अभी ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, बस नीचे वाले पार्ट में जो हमने डिस्कस किया कि इफ द कनेक्टिंग फ्लूइड्स आर सेम एंड वी हैव ड्रॉन ए लाइन, ओके, देन एट सेम लेवल वी हैव सेम प्रेशर, ओके। ओके यस सर। ये हाँ, अब आपकी बात पे आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आप बोल रहे हैं कि जो एयर है इसकी वजह से कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस जगह में, हाँ है ना, जहाँ हाँ पे ये पाइप पाइप है, हॉरिजॉन्टल वाला पाइप। अब आप नीचे आएंगे तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, एयर की हाँ डेंसिटी बहुत कम होती है, तो आप उसको अगर रो जी एच ऐड कर भी देंगे तो बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। हाँ तो एयर की डेंसिटी ऐड करने की जरूरत नहीं, आप करने को कर सकते हैं ना, रो ऑफ एयर ले लीजिए, बहुत कम है, तो वो लगभग जीरो है, तो वो ऐड करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, पॉइंट 1, हाँ ठीक है, तो वहां पर इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, ये ए और बी है और ये हमारे नीचे में 1 और 2 थे, ठीक है। हाँ तो पी ए विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ए, राइट, क्योंकि एयर है। हाँ और यहाँ पर कुछ सी नाम दे देते हैं इसको, है ना, जहां तक एयर है, तो पी बी विल बी अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू पी सी, राइट, क्योंकि वहां भी एयर है। बाकी हाँ यहाँ पर पी बी है प्रेशर, और वापस नीचे आ रहे हैं वहां भी एयर है, तो एयर की वजह से वो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम डेंसिटी एयर की है और डिस्टेंस आपकी बहुत छोटी है। अगर आपकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होती, तो आपको जोड़ने की जरूरत पड़ती है ना। आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, आप एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आप किसी उस पे चढ़ गए हैं, माउंटेन पे चढ़ गए हैं, तो आप कई किलोमीटर, एक्चुअली सेवरल हंड्रेड्स मीटर आपने चेंज किया है, ठीक है, तब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। छोटी सी डिस्टेंस है ना, 1 मीटर भी डिस्टेंस नहीं है, उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एयर की जो डेंसिटी की वजह से रोजीएस वाला टर्म है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है अभी तक? नहीं सर। हाँ, तो पी बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी, बट व्हेन यू गो डाउन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट टू, ओके, हाँ यहाँ से आप नीचे आ रहे हैं, तब फिर यहाँ पर लिक्विड है, शायद मरकरी है, हाँ मरकरी है, हाँ, तो अब रो मरकरी जी की एच डेंसिटी आएगा। ज्यादा है, तब फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हाँ पॉइंट 2 होगा, तो जो P2 होगा, तो जो P2 होगा दैट विल बी इक्वल टू पी सी प्लस रो ऑफ मरकरी, है ना, जी एच। मरकरी है तो उसको मरकरी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू जी एच, ठीक है। हाँ हाँ और हमको क्या निकालना था, डेल्टा पी, ओके, डेल्टा पी इज पी ए माइनस पी बी, ठीक है। पॉइंट ए पर हाँ ज्यादा प्रेशर था और पॉइंट बी तक आते आते प्रेशर ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ दिस वेंचुरी इफेक्ट, तो डेल्टा पी हमें बताना है, ठीक है। और पी बी है दैट इज इक्वल टू पी सी, ओके, सो पी ए माइनस पी सी, और यू कैन सी पी ए और P1 बराबर थे, है ना, यहाँ पे हमने लिखा था। हाँ हाँ
और पीसी कितना है, पीसी कुछ है, ठीक है, उसको हम देखते हैं अभी। अच्छा, यहां तक पूरी कहानी समझ आ गई ना? यस सर। तो पीसी क्या होगा, पीसी होगा P2, सॉरी, P2 होगा पीसी प्लस रोजी एच, जैसा हमने लिखा है अभी यहाँ पर, है ना, ये लिखा है ये। हाँ सर, हाँ सर। तो पीसी विल बी इक्वल टू पीसी प्लस रोजी एच, तो आप लिख सकते हैं पीसी, पीसी को आप लिख सकते हैं P2 माइनस रोजी एच, ठीक है। हाँ तो जो हमने लिखा था ना डेल्टा P इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, P1 माइनस पीसी, तो पीसी की जगह आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पीसी की जगह आप लिखिए पहले बार P1 माइनस पीसी की जगह हो जाएगा P2 और प्लस रोजी एच, है ना, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा P, राइट। हाँ सर। और P1 और P2 तो बराबर है, यहाँ पे हमने बताया था, क्योंकि ये सेम उस पे लेवल पे है और एक ही फ्लूइड के अंदर में, सेम फ्लूइड के अंदर में, ये एक हाँ सर। चर्चा। तो P1 और P2 बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा डेल्टा P है दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। रोजी एच, हाँ। तो वही सेम चीज हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है ड्रॉप, तो हमें सारी चीजें पता है। रो हमको दिया गया है 13,600, सारी एसआई यूनिट है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, और जी दिया गया है 9.5 और एच दिया गया है 0.2 मीटर। तो ये सारी एसआई यूनिट है तो पास्कल में आएगा, इसका हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। 13,600, तो 13,600 टाइम्स 9.5 टाइम्स 25,840। पास्कल, ठीक है। किलो पास्कल में पूछा है तो आप 1000 से डिवाइड भी कर दीजिए, 25.84 किलो पास्कल, हाँ ये बी वाला हो जाएगा सही। हाँ सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना, वो हम्म, डायग्राम देखने को। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। अभी एक अगला क्वेश्चन है, ये वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है। तो एक पूछ रहा है कि द वर्क ट्रांसफर नीडेड टू रेज ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप कोई इस डायग्राम को इग्नोर करिए, ठीक है, डायग्राम्स कहीं इधर उधर के आ गए, ठीक है। आप कोई चीज रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो आपको कौन सी एनर्जी आप इंक्रीज कर रहे हैं, कोई पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। यस सर। ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपन पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें पता है कि रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है। अगर रिपल्सन है और आप रिपेल कर रहे हैं चीज़ों को, फिर भी आप उनको क्लोज लेके आ रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हैं, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट। अब ये पूछ रहा है फ्लूइड इज कूल्ड इन ए रिजिड टैंक, इसके अंदर में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है और उसको ठंडा किया जा रहा है। फ्लूइड लूजेस 500 किलो जूल, ये उसने लूज कर दी इतनी एनर्जी, एंड द पेडल व्हील डज 100 किलो जूल ऑफ वर्क, देन व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया, है ना। सिंपल अगर सिस्टम है तो अगर आप उसको ये डेल क्यू अगर हीट दे रहे हैं, ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी सिस्टम को डेल क्यू हीट देते हैं तो उस हीट का कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है, ओके। सो डी यू इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क के फॉर्म में हमको मिल जाता है, ठीक है। हाँ सर। The heat that you are giving to a system, so some part of that heat will be utilized to increase the internal energy and the remaining will appear as work, okay। तो यहाँ पर जो हीट हम दे रहे हैं, दे नहीं रहे एक्चुअली, वो बाहर आ रही है, तो इसलिए होना चाहिए -500, बिकॉज डेल क्यू इज हीट गिवन बट हियर हीट इज गोइंग आउट, सो इट विल बी -500 किलो जूल, ओके, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, du, ओके, प्लस
डेल डब्ल्यू इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, जो ये हमने इक्वेशन लिखी है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू जो है वो हमको कितना मिल रहा है। ओके, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट है। है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम इंजीनियर हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम मशीन बनाना चाहते हैं, इंजन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इंजन में हम क्या करते हैं कि हम कुछ फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डालने का मतलब हम कुछ हीट डालते हैं ना, कंबशन के बाद हीट निकल रही है। और हमारा पर्पज क्या होता है, हमारा पर्पज होता है कि हमको वर्क मिले, राइट। यस सर। हमारे इंजन की शाफ्ट घूम जाए, तो वर्क जो है वर्क आउटपुट के फॉर्म में हमको मिल रहा है, और हीट इनपुट के फॉर्म में हम लोग देते हैं इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। यस सर। लेकिन ये जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। हाँ। वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ केमिकल्स ले लेते हैं, और उसके ऊपर में वर्क करते हैं। तो वो लोग वर्क ऐड करते हैं, ठीक है, और उनको हीट, मतलब या तो वो दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, जो भी है। बट ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना या लिखना कि ये डेल डब्ल्यू हम दे रहे हैं या वापस हमको मिल रहा है। ठीक है, हाँ सर। अगर ये हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, अगर हम इसको एज ए आउटपुट देख रहे हैं तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे। इसमें इस तरह के कोई डाउट नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग केमिस्ट्री वाली किताब से, केमिस्ट्री की बुक से फॉर्मूला पढ़ के कुछ माइनस प्लस का इधर उधर कर देते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। इसमें कोई पैराडॉक्स या कोई मिस्ट्री नहीं है, बस ये है कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर हम जो हमने लिखा है वहां पर डेल क्यू इज व्हाट हीट वी आर गिविंग टू द सिस्टम। ओके, वी आर गिविंग सम हीट टू द सिस्टम, एंड that heat is being utilized to increase the internal energy of the system। internal energy बढ़ने का मतलब उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाएगा। ठीक है, and the remaining हाँ। energy that we are giving, that will be appeared as work output। Okay, so that's what we have written। Okay, anyways, so since energy is being lost, okay, so we are not giving energy, अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसलिए हमने -5 किलो जूल लिखा है। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्म डी में चला जाएगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, और रिमेनिंग जो है वो वर्क आउटपुट के रूप में बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर वर्क इनपुट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ अगेन पर -100। हाँ -100 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वर्क इनपुट हो रहा है, तो ये ऐसे। ठीक है, हाँ। तो इसलिए जो यहाँ पर डी आएगा वो क्या आएगा, -400। -400 किलो जूल। तो ये माइनस हाँ वाला सर। सही होना चाहिए, प्लस वाला सही नहीं होना चाहिए। तो माइनस यस होने का सर। मतलब है कि इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसीलिए देखो कूल हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कूल हो रहा है, इंक्रीज हो रही होती है तो गर्म हो रहा होता। हीट ही हाँ। तो ये है, तो प्लस माइनस का आप ध्यान रखिए कि हमको वर्क आउटपुट मिल रहा है या हम दे रहे हैं, हीट हम ऐड कर रहे हैं या फिर उससे बाहर जा रही है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए है। ये कह रहा है कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए कंप्लीट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू। इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट फंक्शन होंगे ना, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था, जब आपने शुरू किया था तब जितना प्रेशर और वॉल्यूम था, और वापस आप साइकिल कंप्लीट करके आए तब भी उतना प्रेशर और वॉल्यूम उसी पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर प्रॉपर्टीज नहीं है, पाथ फंक्शन है, वो जीरो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ। change in pressure will be zero, change in temperature will be zero, change in volume will be zero, change in mass will be zero, change in entropy will be zero, because entropy is also a point function, it is a property, but it is not necessary that change in work should be zero। work zero हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन जनरल नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो ये कह रहा है कि Q net is equal to zero। नहीं, Q net zero हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, इनफैक्ट जीरो नहीं होगा, ये जो साइकिल इसने बनाया है इसके लिए जीरो नहीं होगा। इंटरनल हाँ सर। एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है ना, इंटरनल एनर्जी, ये सिंपल सिस्टम्स के लिए केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ये आपको पता है। हाँ। इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
तो अगर आप सिंपल कोई मोनोएटॉमिक गैस लेंगे, डाइएटॉमिक गैस लेंगे, तो उनके लिए आप इंटरनल एनर्जी को आप टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, 3/2 RT, ऐसे, है ना, हाँ इंटरनल एनर्जी हाँ इक्वल टू, यस यस है ना। यस सर आर तो यस कांस्टेंट सर होता है, आर तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर एक पॉइंट फंक्शन है। तो अब क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी एक साइकिल कंप्लीट होने पे। इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल हाँ एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज जीरो होगा। अच्छा, ये 3/2 RT मैंने मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिया है। डाइएटॉमिक हाँ गैस के लिए भी 3/2 RT हो सकता है इफ द अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी नॉट एक्टिवेटेड, ठीक है। यस सर ये कह रहा है कि डब्ल्यू नेट आउट इक्वल टू डब्ल्यू, सॉरी, वर्क नेट आउटपुट विल बी इक्वल टू हीट इनपुट, नेट हीट इनपुट। दैट इज करेक्ट सर दैट इज करेक्ट, वाई, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यहाँ पर डेल यू तो जीरो हो गया क्योंकि साइकिल है। हाँ तो जो भी हीट इनपुट है दैट विल कम आउट है हीट आउटपुट। यहाँ पर ध्यान रखना है हमको कि ये जो वर्क है ये आउटपुट है और हीट है ये इनपुट है, ठीक है। इनपुट है हाँ तो हमारा ऑप्शन सी सही है और डी ऑप्शन भी सही नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यस सर अब ये क्या है, अब कुछ एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है। A electrical stove consumes 5 kilowatt of power and transfers 3 kilowatt of heat to the food. What is the efficiency of stove? कंज्यूम कर रहा है 5 किलोवाट और ट्रांसफर केवल 3 किलोवाट कर पा रहा है, बाकी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है उसकी, तो 100% एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी कितनी होगी, जितनी ट्रांसफर कर रहा है और जितनी कर सकता था, तो ये 100 का मल्टीप्लाई करके इतने परसेंट हो जाएगी, 60% है एफिशिएंसी इसकी, ठीक है। हाँ सर ओके, जो इसका न्यूमरेटर होता है उसमें होता है व्हाट एक्चुअल we are getting, and in denominator we put what maximum we could have got, okay। यस सर ये पंप एफिशिएंसी की कुछ बात कर रहा है कि हाउ द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज डिफाइंड। तो इसमें भी वही सेम चीज है, पंप का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। पंप का काम प्रेशर इंक्रीज करना होता है ना। पंप और यस सर कंप्रेसर, पंप और कंप्रेसर दोनों का काम होता है प्रेशर इंक्रीज करना। और प्रेशर एक फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी का, जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर, ऐसे। Okay, the efficiency of pump is defined as mechanical energy output divided by electrical input. नो नो सर हाँ, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के फॉर्म में आपको नहीं मिल रही है, आप उसमें शाफ्ट वगैरह घुमा नहीं रहे हैं, मतलब आप हाँ शाफ्ट मोटर की घुमा रहे हैं, पंप की घुमा रहे हैं, लेकिन एज ए आउटपुट आपको मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। हाँ मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, उसमें प्रेशर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, डिवाइड बाई मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। हाँ ये ये बात सही है सही है। और मैकेनिकल एनर्जी इनपुट डिवाइडेड बाई मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज ऑफ फ्लूइड, ये तो उल्टा हो गया उसका। और हीट इनपुट, हीट तो अपन देते नहीं पंप को, वर्क आउटपुट, तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से वो टरबाइन की इफिशियंसी की बात कर रहा है, पूछ रहा है टरबाइन कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड प्राइमरली इनटू व्हिच फॉर्म। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन जो मैकेनिकल सॉरी वो मैकेनिकल एनर्जी, पानी मैकेनिकल के जो नीचे एनर्जी, घूम हाँ, पानी के नीचे घूमता है उससे शाफ्ट घूमने लगती है। तो जो हाँ पानी के हाँ पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, या फिर प्रेशर एनर्जी भी हो सकती है, और आउटपुट में हमको शाफ्ट घूमती हुई मिलती है, तो वो शाफ्ट वर्क हमको मिल जाता है। हाँ सर थर्मल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता नहीं है टरबाइन, पोटेंशियल एनर्जी में भी नहीं कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी भी नहीं चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रहा है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द टरबाइन एफिशिएंसी इज 80% एंड द जनरेटर एफिशिएंसी इज 0.9%, व्हाट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन जनरेटर कॉम्बिनेशन। तो देखिए, इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कि एक आपका सिस्टम था, उसकी इफिशियंसी लेटर से नीटा 1 थी, उसी से एक दूसरा सिस्टम भी कनेक्टेड है, उसकी नीटा 2 है, और ये सारे इस तरह से कनेक्टेड है सीरीज में, तो जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है इनका सबका मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। हाँ तो ये 72 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके। हाँ सर
अब कुछ और क्वेश्चन है, तो काफी सारे क्वेश्चन है, तो जब आपको लगे कि आज के लिए इनफ है तब हम वहां पर रोक देंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन में हम नहीं सॉल्व करेंगे वो पीडीएफ तो मैं नहीं अपलोड कर दूंगा, और अपने प्रैक्टिस के लिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज वाले में केवल रिवीजन टाइप की चीजें ज्यादा हैं, तो करें क्वेश्चन या फिर अभी के लिए रोक दें? एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर। हाँ, ओके सर। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्लिम पर्सन वेज 68 किलोग्राम, और दिस चबी पर्सन, कोई एक हैवी पर्सन है, उसका वेट है 136 किलोग्राम, एंड बोथ हैव ए टोटल फीट एरिया ऑफ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. Acceleration due to gravity it is given, and it is asking that normal stress, that is pressure exerted by the slim person, is 22.23 kilopascal. What will be the pressure exerted by another person, chubby person? ऑप्शन ए सर। ये क्वेश्चन लेक्चर में था। लेक्चर में था? हाँ। Are you sure that it should be A? एक मिनट सर। ओ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय चबी पर्सन, ये तो ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी है, क्योंकि दोनों का जो फीट एरिया है, पैर हैं, वो हाँ। दोनों के बराबर हैं। अब हाँ, एक यस सर। 68 है और दूसरा उससे डबल है, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। हाँ सर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्किनी पर्सन इज ऑप्शन ए सर। हाँ, बट इसमें वो हैवी वाले चबी पर्सन का दिया है। है ना। हाँ। हाँ, यस हम्म, सर। हम्म, तो ये ऐसे हो गया। अगर इसका जो फीट एरिया है दूसरे वाले का वो भी डबल हो जाता तब फिर प्रेशर सेम रह जाता। हाँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मोनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ए ओरिफिस, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज दिस मच, हाइट ऑफ दिस 200। ये कुछ दिया गया है, ये हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा पी इज रो जी एच, है ना। ये तो शायद हमने किया ही था, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेंसिटी है 13,600 टाइम्स 9.5 टाइम्स कितना है इसका डिफरेंस, 0.2 मीटर, तो 25,000 है, 25,840 पास्कल, किलो पास्कल में यहाँ पर हुआ जाएगा डेसिमल पॉइंट। हाँ ठीक है, सर। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गेज वर्सेस एब्सोल्यूट। ये बस ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए, है ना, कोई बहुत इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ए प्रेशर गेज रीड्स 500 किलो पास्कल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? तो हमने अभी डिस्कस किया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है दैट इज द समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, है ना। तो ये 100 किलो पास्कल प्लस 50। प्लस 50 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा, बी हो 150। जाएगा। ओके, इट इज, कोई रॉक गिर रहा है, ए रॉक विद मास एम एट एज ऑफ ए क्लिफ, ये कोई क्लिफ है, वहां से गिर जाता है। यहाँ पर स्टेट 1 है, पोटेंशियल एनर्जी हियर इज 10 किलो जूल, और ये बस रखा हुआ था साथ ऐसे चुपचाप। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 थी ऊपर में, काइनेटिक एनर्जी 0। इट फॉल्स टू स्टेट 2, ऐसे गिर गया तो यहाँ पर पहुंच गया 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 7 किलो जूल हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, 3 कम हुई है तो 3 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर, हाँ। है ना। स्ट्रिंग ए फ्लूइड, एक फ्लूइड है, उसको कुछ मिक्स कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि फ्लूइड इज इन ए रिजिड टैंक, एक टैंक है वो रिजिड है, बढ़िया, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फ्लूइड लूजेज 500 किलो जूल, तो यहाँ पर जो क्यू है वो माइनस में है ना, -500 किलो जूल लूज हो रही। वाइल द पैडल व्हील डज, वही सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ रहे हैं ये बार बार रिपीट होके। जो डब्ल्यू है ना, वो पैडल वर्क कर रहा है, तो हमको आउटपुट मिल नहीं रहा है, हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये माइनस में रहेगा, माइनस किलो जूल। वट एंड इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी वाज 800 किलो जूल,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू यहाँ पर हमारा -500 किलो जूल है, ठीक है, और जो वर्क आउटपुट है वो -100 किलो जूल है, क्योंकि ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो जो डेल यू है वो हो जाएगा हमारा -400 किलो जूल। तो U2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू U2 प्लस डेल्टा और DU। ये डे U1 हमारा 800 किलो जूल था और DU है -400 किलो जूल। तो जो U2 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 400 किलो जूल। इसमें भी सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके, ये आ गया ना समझ, आसान सा क्वेश्चन है ये। हाँ सर। अब ये कह रहा है एडियाबैटिक पिस्टन। एडियाबैटिक पिस्टन सिलेंडर का मतलब है कि इसमें आप ये जो इसकी सरफेस है ये इंसुलेटेड है। इज 100 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन टू कंप्रेस ए गैस। ओके, तो इसमें वर्क हम लोग डन बाय समवन, ओके, नॉट वर्क आउटपुट। सो जो ये है दैट विल बी -10 किलो जूल। ओके, अगर वर्क आउटपुट होता तो प्लस में रहता है ना। और डेल क्यू हाँ वो सर। 0, डेल क्यू है वो 0 किलो जूल है, क्योंकि एडियाबैटिक है, इंसुलेटेड है। हाँ। द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल मतलब इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से हम कर लेंगे 0 इक्वल टू DU -10 किलो जूल। तो DU है वो 10 किलो जूल हो जाएगी। ऑप्शन सी फिर। और हमने नहीं, कुछ वर्क हाँ, आउटपुट दिया और ऑप्शन बी। उसका हीट का कुछ इंटरेक्शन था नहीं। तो जो भी हम वर्क उसको दे रहे हैं, हम जो वर्क दे रहे हैं वो हीट के रूप में लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि इंसुलेटेड थी वॉल्स। जो भी हमने वर्क दिया वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में मिल गया हमको, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। हाँ सर। अब कुछ टरबाइन पावर की बात कर रहा है। ए रिजर्वायर सप्लाइज वाटर एट द रेट ऑफ 1500 किलोग्राम पर सेकेंड टू ए टरबाइन लोकेटेड एट 70 मीटर बिलो द सरफेस, ठीक है। ये कुछ उसका ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन दिया। रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड इज दिस मच, द मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड if the turbine produces this much of the shaft work, what is the efficiency, ठीक है। वाटर जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 500 किलो जूल, सॉरी किलोग्राम पर सेकेंड, और जो हाइट है वो है 70 मीटर। समझ रहे हैं, यहाँ से कुछ एक डैम टाइप का होगा और वहां से वाटर आ रहा है नीचे, यहाँ पे कुछ टरबाइन लगे होंगे हमारे, है ना। हाँ सर। हाँ सर। जी दिया गया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी हमको कितनी मिल रही होगी, एनर्जी मिल रही होगी mgh, है ना। हाँ, जो 1000। ठीक है ना, हाँ हाँ। इतनी एनर्जी हमको मिल रही होगी। तो ये कितना आता है कैलकुलेट करके देखते हैं। 1500 टाइम्स 9.8 टाइम्स 70, तो ये आ रहा है 10,29,000 जूल पर सेकंड, है ना, क्योंकि हमने सारी यूनिट ऐसा यूनिट में रखी थी। आप इसको किलो जूल में कर लीजिए तो हो जाएगा 10,2900, सॉरी 1029 किलो जूल पर सेकेंड, या फिर किलो सेकंड। वाट भी बोलते हैं इसको, है ना। किलो जूल पर सेकेंड को किलो वाट बोलते हैं। हाँ। हाँ, इसमें ये गलत लिख दिया है, ये वाली लाइन हटा देते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। द रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड पोटेंशियल एनर्जी, ये इसने 1031 लिख दिया है, जबकि हमारा कुछ दूसरा आ रहा है। या फिर ये भी हो हाँ। सकता है कि जो वाटर वहां से गिर रहा है ना उसका कुछ फॉर्म जो है लॉस हो गया हो। अच्छा, हमने 81 लेना चाहिए था कैलकुलेटर में, तो उससे इंक्रीज होगा क्या कुछ। 81 टाइम्स 70, हाँ ठीक है। हाँ।
बट एनीवेज दिस लाइन सीम्स टू बी रिडंडेंट, ओके, क्योंकि या तो ये दे दे या फिर वो दे दे। एनीवेज हम ये लेके चलते हैं। इतनी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है, इतना किलोवाट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं? 800 किलोवाट। तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो 800 जितनी हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं डिवाइड बाई टोटल कितनी कर सकते थे? 1029 किलोवाट कर सकते थे। तो लगभग 77 77.7। 77.7 आ रहा है सर। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए। हाँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ओवरऑल एफिशिएंसी, ए पावर प्लांट हैज ए कंबशन एफिशिएंसी ऑफ 90%, thermal efficiency of 40% and a generator efficiency of 95%। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा? हमने डिस्कस किया था कि सबका मल्टीप्लाई होता है, तो 0.9 टाइम्स 0.4 टाइम्स 0.95, ये ओवरऑल एफिशिएंसी होगी। 0.342। ठीक है, हाँ हाँ एक ये बार ऑप्शन है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो 0.9 टाइम्स 0.4 0.95, ठीक है। इलेक्ट्रिक कुकिंग, ए इलेक्ट्रिकल बर्नर विद ए पावर रेटिंग ऑफ 5 किलोवाट is used to heat a pot if only ये हो 3 गया सर। kilowatt। अच्छा, तो इसमें क्या आया था? ऑप्शन सी 60%। 60%। बस इतना ही है। और अब ये समरी आ गई उसकी, हाँ हाँ ज्वाइन करना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर। तो हमने डिस्कस किया कि हम जिस पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं, जिसको स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, वो सारी सराउंडिंग में आती हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, वो बाउंड्री होती है। ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, फिक्स्ड भी हो सकती है और मूविंग भी हो सकती है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ओपन में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही यूनिट है, सब चीज़ की लेंथ की मीटर है, किलोग्राम की, मास की किलोग्राम है। तो अगर आप सारे यूनिट ऐसा यूनिट में रखेंगे तो फाइनल आंसर आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो आप क्वेश्चन करते समय ये मेक श्योर करिए कि आपने यूनिट कन्वर्जन ठीक से किया है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर आप सिस्टम को डिवाइड कर दें तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपने सिस्टम को आधा कर दिया, टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी नहीं चेंज होंगे, मास आधा हो जाएगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होती है पॉइंट फंक्शन होती हैं, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। और ये प्रॉपर्टीज के एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और स्टेट पॉस्टुलेट भी हमने डिस्कस किया है ना। स्टेट पॉस्टुलेट के साथ हमने गिब्स फेज रूल भी डिस्कस किया है ना। तो गिब्स फेज रूल में था F इक्वल टू 2 प्लस C माइनस P, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और यू कैन से the number of independent intensive properties is equal to 2 plus C. C is the number of independent chemical components, and P is number of independent phases in equilibrium. Okay, so from this formula you can calculate how many independent intensive variables are required to completely define a state. Okay, तो सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम में एक ही फेज होती है और एक ही केमिकल कंपोजिशन होता है, तो वहां पर F इक्वल टू 2 होता है। और अगर टू फेज है, फॉर एग्जांपल वाटर, लिक्विड और स्टीम का मिक्सचर है, तो वहां पर 2 फेजेस हैं, तो वहां पर F इक्वल टू 1, यानी ओनली 1 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी रिक्वायर्ड। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जब होता है तब ये सारे इक्विलिब्रियम होने चाहिए, है ना। नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, नो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम शुड बी देयर, यानी कि नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स constant composition with respect to time, and phase means the mass stability. I mean, if steam is, let us say, 80% and liquid water is 20%, then this should not change with time, then we call it is in phase equilibrium. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में चेंज नहीं हो रहे। अगर इक्विलिब्रियम है तब भी वो दोनों चीजें एक दूसरे में चेंज हो रही होंगी। जो लिक्विड वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा,
वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, लेकिन ओवरऑल उनकी जो परसेंटेज है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि जितना अमाउंट लिक्विड से वेपर में जा रहा है उतना ही अमाउंट वेपर से लिक्विड में जा रहा होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन हो रहा है बट वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, टाइम के साथ कुछ गवर्निंग लॉज और होते हैं, हमने 3 डिस्कस किए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे हम लोग थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डायरेक्शनलिटी के बारे में बात करता है। और हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि ये जो भी लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सारे फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हैं। हमने नेचर को ऑब्जर्व किया कि नेचर इस सर्टेन तरीके से बिहेव कर रही है, हमने कहीं से ड्राइव नहीं किया इनको, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे फंडामेंटल लॉ से ड्राइव कर लिया। अगर कर लिया होता तो फिर ये लॉज फंडामेंटल लॉ नहीं होते। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि फर्स्ट लॉ को ड्राइव करो या सेकंड लॉ को ड्राइव करो, तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनके मैथमेटिकल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, किसी एक फॉर्म में लिखा है दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे फंडामेंटल लॉ से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारे फंडामेंटल लॉ होते हैं, इनको हमने नेचर से ऑब्जर्व करके सीखा है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके, तो अगर कोई डाउट है इसमें तो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। No ठीक है, doubt, कोई sir. डाउट है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको आज रुकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट का एक बार आप चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कुछ सबमिशन की डेडलाइन हो और वो आप मिस कर दें। चेक किया है आपने कब करना है इसको सबमिट? 4th February, sir. अच्छा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.